Namaste everyone. Hope all of you are well. Actually, in these few days I have not made video because my ear surgery was there, as all of you know very well. And even I want some more days rest also. But then also I'm trying to make videos for you all that your study should continue. I can't speak so much loud, but whatever the potential I'm having, I'm trying to make my video. In the last lecture, I have talked about the spontaneity, how the reaction occurs slowly in the process, as I have said you about the water. At a certain temperature, when the hydrogen and oxygen gases mixed and form the first droplets of water, so this changing process was spontaneity, as I have informed you in the previous lecture also, that it is an irreversible process. The spontaneity reaction is an irreversible process. And I have given you some of the examples like ammonia, water, HCl, and many more. If I talk about nitrogen dioxide, that was also one example in which I have told you about exothermic and endothermic reactions. When you get the heat enthalpy of reaction value positive, means it is endothermic reaction, and when you get the delta HR value negative, then it is an exothermic reaction. Today our topic is entropy and spontaneity. First of all, in this spontaneity, as you have know about the rate of reaction, how the process occurs and what happens during this process. So let's start our new topic, that is entropy and spontaneity. Now question is, what is the thing which derive the spontaneity reactions? Heat enthalpy is zero is when? The few questions should come in your mind whenever you start to read anything. That time this question must be in your mind. Yeah, sir is saying that spontaneity process shows you the direction. In the first law of thermodynamics, it has only said you about, the heat is evolved or involved. Q value is positive or negative. But in which direction they have not said you. And in the spontaneity they have said you about in which direction they are. So, if there is no change in enthalpy, delta H is equal to 0, then that reaction will be spontaneous or not. Remember, dear students, whenever this question will be asked to you, that time you have to only say yes. When there will be no change in spontaneous reactions, enthalpy, there is no change, then also it is in spontaneous reaction, delta H value is equal to 0. Now, you should take an example. In a container, you should take two more gases. And that two gases, just assume that one gas is A and another gas is B. And just mix this both the gases. To see, there is one Q. In one Q, adiabatic wall is there. Here, A gas, another B gas. Now we have removed this wall and we have mixed this. So now question is what? Have you ever thought about that when they mix, what will happen to them? After mixing, what will happen to these gases? Gases A and gases B, what will happen? Now, both the gases will be in the kinetic motion. They will be separated or they will be movable. The partition which we have withdrawn. After withdrawing, the complete process, as you will examine these things, that how these things occur, then you will see in the container that molecule of gas A, and similarly if you are pick up the molecules in the right container, then that will be molecule of gas B, means there will be not mixing of gas A and gas B. You can easily separate. Now question is what?
is two. This thing will happen in all the gases or only in the few gases? ये सब गैसेस के लिए लागू होगा या सिर्फ कुछ ही गैसेस के लिए लागू होगा? That question should come in your mind. Here it is in the isolated system, the tendency of the system, energy to become more disordered. Means this question should arise in your mind. Energy to become more disordered, or you can say chaotic. It's called chaotic. This could be a criterion, and it is a spontaneous change. It is a spontaneous change. ये बदलाव है जिसको स्पॉन्टेनियस चेंज कहते हैं। अब जो एक नया स्टेट फंक्शन इंट्रोड्यूस होगा जिसका नाम है इंट्रॉपी। अब क्वेश्चन आप पूछोगे सर यहाँ पे इंट्रॉपी का जुड़ने का क्या रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न टू इंट्रोड्यूस हियर इंट्रॉपी? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओगे, गैस ए और गैस बी दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर ऑर्डर तो डिसऑर्डर होगा ना। खुद सोचो, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो आप लोग, ब्लड बी पॉजिटिव और ब्लड ए पॉजिटिव, इस दोनों को मिक्स करोगे, मिक्स तो होगा नहीं क्योंकि ये ब्लड ए पॉजिटिव है कि बी पॉजिटिव, लेकिन आपने एक बर्तन में डाल दिया, एक वेजल के अंदर में डाल दिया, उनका जो ऑर्डर था बी पॉजिटिव का या ए पॉजिटिव का, वो दोनों का ऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर हो जाएगा। और जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, स्पेशली मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा इंट्रॉपी होगा। आप पूछ सकते हो कि सर ये इंट्रॉपी होता क्या है? द इंट्रॉपी चेंज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस फ्रॉम वन पैटर्न इन द रिएक्टेंट टू अनदर इन द प्रोडक्ट। अब किसी भी पैटर्न को चेंज करने के लिए जो स्टेट फंक्शन यूज होता है वो इंट्रॉपी है, चाहे वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो हमें याद रखना है, कुछ बातों को ध्यान से भी सुनना भी है कि ये जो स्टेट फंक्शन है इंट्रॉपी, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसको कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, मतलब उनका जो सिचुएशन है एक जैसा बनने का, जितना ज़्यादा मतलब वो अपने पोजीशंस पे नहीं रहेंगे, मतलब डिसऑर्डर होंगे, उतना ज़्यादा इंट्रॉपी होगा। इंट्रॉपी एज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब तुरंत जो रैंडम होगा ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली मूव होंगे, उसका जो मेजरमेंट करेगा वो डिसऑर्डर का जो सिस्टम, जो पूरा डिसऑर्डर होगा उसका जो मेजरमेंट करेगा, वो जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, इंट्रॉपी की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। अब तुम लोग दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड, क्या हम इसमें इसका कंपैरिजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा तुम लोगों का, मैं बता देता हूँ। इंट्रॉपी एटम्स और आयंस फॉर्म वन पैटर्न इन द रिएक्टेंट टू अनदर इन द प्रोडक्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी मच डिसऑर्डर देन द रिएक्टेंट। अब एक जैसा नहीं रहेगा, रिएक्टेंट का अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट का जो है वो अलग होगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ये इंट्रॉपी, जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हो, रिएक्टेंट का डिसऑर्डर अलग होगा और प्रोडक्ट का डिसऑर्डर अलग होगा। समझ में आया आप लोगों को? तो जितना ज़्यादा रेंडमनेस, जितना ज़्यादा डिसऑर्डर, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी ज़्यादा इंट्रॉपी। डेल्टा एस जो चेंज इन इंट्रॉपी जो होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो रेंडमनेस ज़्यादा होगा तो स्पॉन्टेनिटी ज़्यादा होगी।
So as all you have seen, what is entropy? The thermodynamic quantity which is used to measure degree of randomness or disorderness of the system is called entropy. It is denoted by capital S. तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि इंट्रॉपी भी एक स्टेट फंक्शन है जो स्पेशली क्या मेज़र करता है कि मतलब किस तरह से गैसियस मॉलिक्यूल्स रैंडमनेस में डिसऑर्डर होते हैं, उस सिस्टम में किस रफ्तार से, किस स्पीड से जो उनके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो डिसऑर्डरनेस में हो जाते हैं, या जल्दी से, जिसको आप रैंडमनेस कहते हो, तो जल्दी से जो चेंजेस आते हैं वही क्वांटिटी को, वो मेजरिंग क्वांटिटी को इंट्रॉपी कहा जाता है, जिसको कैपिटल एस के थ्रू डिनोट किया जा सकता है। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि इंट्रॉपी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। तो ये आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि इंट्रॉपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर रैंडमनेस ज़्यादा होगा तो इंट्रॉपी भी ज़्यादा होगी, डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगी तो इंट्रॉपी भी ज़्यादा होगा। तो अगर इंट्रॉपी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि रैंडमनेस भी ज़्यादा है और डिसऑर्डरनेस भी ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है मोर इज़ डिसऑर्डरनेस, हायर इज़ इंट्रॉपी। तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि अगर डिसऑर्डरनेस की वैल्यू ज़्यादा है तो इंट्रॉपी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। दूसरा मैंने लिखा है द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल मैनर या रिवर्सिबल प्रोसेस टू द टेम्परेचर एट विच हीट इज़ एब्जॉर्ब इक्वल टू चेंज इन इंट्रॉपी। कहने का मतलब अगर जितना भी सिस्टम के थ्रू हीट एब्जॉर्ब हो रहा है आइसोथर्मल या रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, जिसमें आप टेम्परेचर T ले लीजिए, और जितना भी इंट्रॉपी चेंज हो रहा है, इस दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। कहने का मतलब जो रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर T को लेकर के, मतलब आप कह सकते हो द हीट का रेशियो और टेम्परेचर का रेशियो, मतलब हीट अपॉन टेम्परेचर, जो Q रिवर्सिबल बाई T आपको दिख रहा होगा, डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाई T। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है चेंज इन इंट्रॉपी दैट इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाई T। Q रिवर्सिबल बाई T को किस तरह से आप बोलोगे? आपको बोलना है द रेशियो ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इन आइसोथर्मल and reversible process to the temperature T at which heat is absorbed is equal to the change in entropy. So change in entropy is heat absorbed by temperature. तो यहाँ पर Q reversible क्या है? Heat absorbed by the system in reversible process at temperature T. अगर कोई पूछेगा आपको what is the SI unit of entropy, तो आपको जवाब देना है जूल पर केल्विन, अदरवाइज कैलोरी पर केल्विन। इतना याद रखना है आप लोगों को कि इंट्रॉपी जो है जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर केल्विन इसका ऐसा यूनिट। तो इसका फार्मूलाज आप लोगों को लिख लेना है। डेल्टा एस इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। कहने का मतलब जो फाइनल चेंजेस आएंगे इंट्रॉपी में डिसऑर्डरनेस होने के बाद, जो रैंडमनेस हुई है उसके बाद जो वैल्यू होगा और इनिशियली जो वैल्यू होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ ओनली कॉल्ड द चेंज इन इंट्रॉपी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वॉल्यूम V में गैसियस मॉलिक्यूल A है, एक गैसियस मॉलिक्यूल B है, दोनों का वॉल हटा करके हमने मिक्स किया, अब जो फाइनल वैल्यू आया और जो इनिशियल वैल्यू था, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ ओनली द चेंज इन इंट्रॉपी। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसका चेंज इन वैल्यू पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, कैसे पता चलेगा? तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है, अगर इंट्रॉपी फाइनल इनिशियल से ग्रेटर होगा, मतलब आपका जो इंट्रॉपी है उसका जो फाइनल स्टेट का वैल्यू है और इनिशियल स्टेट, तो अगर फाइनल स्टेट का वैल्यू बड़ा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा? डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल है। तो फाइनल अगर बड़ा हुआ और इनिशियल छोटा हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि इंट्रॉपी चेंज जो है पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर फाइनल की वैल्यू इनिशियल की वैल्यू से कम है, मतलब इनिशियल की वैल्यू ही बड़ी है और इंट्रॉपी चेंज मतलब फाइनल इंट्रॉपी जो है उसकी वैल्यू कम है, तो इंट्रॉपी चेंज की वैल्यू क्या होगी? वो निगेटिव होगी। इतना तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि इंट्रॉपी चेंज इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, देन the entropy change is
पॉजिटिव व्हेन एस फाइनल इज ग्रेटर एंड इंट्रॉपी चेंज इज नेगेटिव व्हेन एस इनिशियल इज ग्रेटर। एस का मतलब इंट्रॉपी। अब कोई पूछेगा व्हाट इज इंट्रॉपी, इंट्रॉपी कैसे पता चलेगा? इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे आप लोगों को बताया था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, याद होगा आप लोगों को। सो इंट्रॉपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज़ एन स्टेट फंक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन में हम लिखते हैं कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसमें हमें इंट्रॉपी चेंज करना है, क्योंकि रेंडमनेस कैन हैपन इन अ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो। सो दैट टाइम यू हैव टू यूज द entropy change in a chemical reaction. Delta S is equal to summation of entropy product minus summation of entropy reactant। मतलब जो रिएक्टेंट का जो इंट्रॉपी है उसका पूरा का समेशन निकाल लेना है, प्रोडक्ट का जो इंट्रॉपी है उसका पूरा का समेशन निकाल देना है, और चेंज इन इंट्रॉपी इन अ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा समेशन ऑफ इंट्रॉपी प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंट्रॉपी रिएक्टेंट। इंट्रॉपी चेंज फॉर अ प्रोसेस, हाँ प्रोसेस के लिए अगर कोई प्रोसेस चेंज हो रहा है तो वहाँ पे वही फार्मूला यूज़ करेंगे, Q रिवर्सिबल बाई T, याद रखना है Q रिवर्सिबल बाई T। Q रिवर्सिबल मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इंट्रॉपी चेंज फॉर अ प्रोसेस डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए निकालना होगा तो डेल्टा S इज इक्वल टू एन CV, मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ln log T2 बाई T1 प्लस nr log V2 बाई V1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? NCP log T2 बाई T1 प्लस nr log P1 बाई P2। तो ये था हमारा इंट्रॉपी चेंजेस के कुछ फार्मूलेज जो आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। और जितने भी फार्मूलाज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे फार्मूलाज आप लोगों को या तो स्क्रीनशॉट ले करके रख लेना है, अदरवाइज़ आप लोगों को माइंड में सेट कर लेना है कि ये फार्मूला हमारा यूज़ होने वाला है। तो ये था हमारा इंट्रॉपी जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया इंट्रॉपी के बारे में। अब इससे आगे मैं आपको बताऊँ।